بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کا واحد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان کا توسیع منصوبہ 8 سال گزر جانے کے باوجود مکمل نہ ہو سکا۔ تاحال منصوبہ فنڈز کا منتظر ہے۔ توسیع منصوبے کی لاگت 3 ارب سے زائد تک پہنچ گئی ہے۔ اسی حوالے سے بلال نیازی کی رپورٹ دیکھیے۔ جنوبی پنجاب کے واحد دل کے ہسپتال چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا توسیع منصوبہ اس سال بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ منصوبہ مکمل نہ ہونے کی وجہ فنڈز کی کمی بتائی جا رہی ہے۔ ہسپتال کے توسیع منصوبے کو مکمل ہونے کے لیے مزید 1 ارب سے زائد کا بجٹ چاہیے۔ رواں مالی سال میں بھی توسیع منصوبہ کو مکمل کرنے کے لیے خاطر خواہ فنڈ جاری نہیں کیا جا سکا۔ منصوبے کا تخمینہ 3 ارب سے زائد تک پہنچ چکا ہے۔ کارڈیالوجی ہسپتال میں جگہ کی کمی کے باعث مریض پریشان نظر آتے ہیں۔ آئے تو ادھر ملتان سے ہی ہیں یہاں، تو منصوبہ تو وہ جتنی جلدی ہو جائے اس کے لیے تو بہتر ہے کہ مریض جو آتے ہیں بڑی دقت ہو رہی ہے۔ اب بھی آج رش اتنا زیادہ ہے اور بڑی مشکل سے چیک اپ ہو رہا ہے اندر۔ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا توسیع منصوبہ سال 2012 میں شروع ہوا تھا۔ سابقہ حکومت میں بھی فنڈز کی قلت کے باعث منصوبہ مسلسل تاخیر کا شکار رہا۔ توسیع منصوبے میں 242 بیڈز کا پروجیکٹ شامل ہے۔ منصوبہ مکمل ہونے سے ہسپتال میں بیڈز کی تعداد 500 تک پہنچ جائے گی۔ اب ہسپتال میں 208 بیڈز کی جگہ ہے جو کہ مریضوں کے رش کے باعث پر رہتی ہے۔ مکمل نہیں ہے، بالکل کڑی بندے تنگ ہیں، اتنا حد کو زیادہ نہ بان کھان دی جگہ۔ کہاں سے ہے؟ خان گڑھ ہے۔ ہسپتال میں جگہ کی کمی کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مریضوں نے مطالبہ کیا ہے کہ توسیع منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ کیمرہ مین قرار حیدر کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔ اسلام آباد اور کراچی سے مارچ 2020 میں منقطع ہونے والا ملتان کا فضائی رابطہ 15 اگست سے بحال ہوگا۔ ڈسٹرکٹ مینیجر پی آئی اے باقر حسین نقوی کا کہنا ہے کہ کراچی اور اسلام آباد کے لیے 12 اور 14 اگست کو خصوصی پروازیں بھی چلائی جا رہی ہیں۔ قومی ایئر لائنز کی طرف سے آن لائن ٹکٹنگ کا سلسلہ بھی بحال کر دیا گیا۔ ملتان ایئرپورٹ سے کراچی اور اسلام آباد کے لیے پروازیں دستیاب ہو سکیں گی۔ قومی ایئر لائن کے ڈسٹرکٹ مینیجر باقر نقوی کا کہنا تھا کہ 15 اگست سے باقاعدہ شیڈیول کے مطابق ڈومیسٹک پروازیں شروع ہو جائیں گی۔ تو گورنمنٹ نے ہمیں اب ملتان سے بھی آپریشن کی اجازت دے دی ہے، اس لیے ہم نے 15 اگست کے بعد تو ہم اپنی شیڈول فلائٹیں شروع کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم 12 اگست کو اور 14 اگست کو کراچی سے اور 14 اگست کو اسلام آباد سے ملتان کے لیے فلائٹ چلائیں گے، اور اس کے بعد 15 کے بعد شیڈول فلائٹس ہماری پراپرلی شروع ہو جائیں گی، جو 2 ویکلی فلائٹس ہیں ہماری اسلام آباد کی، جمعے اور اتوار کے دن۔ ڈسٹرکٹ مینیجر پی آئی اے باقر نقوی کا مزید کہنا تھا کہ ملتان سے کراچی کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ کراچی کے لیے بدھ، جمعہ اور اتوار کے روز پروازیں ہوں گی۔ اسلام آباد کے لیے ملتان ہفتہ وار 2 پروازیں چلائی جائیں گی۔ اسلام آباد کے لیے پرواز جمعہ اور اتوار کو دستیاب ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم یہاں سے ابھی دبئی کے لیے فلائٹیں ہم آپریٹ کر رہے ہیں، شارجہ کے لیے کر رہے ہیں اور جدہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ابھی جدہ نے چونکہ سعودی گورنمنٹ نے ہمیں یہاں سے لوگوں کو واپس جو اقامے والے ہیں ان کو ابھی اپروول نہیں دی، تو جدہ کی فلائٹس ہماری وہاں سے پیسنجر لا رہی ہے، لے جا نہیں رہی۔ ملتان بین الاقوامی ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن پہلے سے جاری ہے۔ ملتان بین الاقوامی ایئرپورٹ سے دبئی اور شارجہ کے لیے پروازوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملتان سے جدہ مسافروں کو لے جانے کی اجازت ملتے ہی قومی ایئر لائنز مسافروں کو سعودی عرب لے جائے گی۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ سونے کی قیمتوں میں نیا ریکارڈ قائم۔ سونے کی قیمت میں آج فی تولہ 2000 روپے اضافہ ہو گیا۔ 24 قیرات والا فی تولہ سونے کی نئی قیمت 1,33,000 روپے ہو گئی، جبکہ 22 قیرات والے فی تولہ سونے کی قیمت 1,21,917 روپے ہو گئی۔ 21 قیرات والا فی تولہ سونا 1,16,375 روپے کا ہو گیا ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سونے کی قیمتوں میں نیا ریکارڈ قائم۔ سونے کی قیمت میں آج پھر فی تولہ 2000 روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 22 قیرات والے فی تولہ سونے کی نئی قیمت 1,33,000 روپے ہو گئی۔ 22 قیرات والا فی تولہ سونے کی قیمت 1,21,000 روپے جبکہ 917 روپے کی ہو گئی۔ 21 قیرات والا فی تولہ سونا 1,16,375 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں 22 قیرات والا فی تولہ سونے کی قیمت 1,21,917 روپے ہو گئی، جبکہ 21 قیرات والا فی تولہ سونا 1,16,375 روپے کا ہو گیا۔ آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب فورٹ منرو گردو ٹالی پل پر ٹرک گرنے کا معاملہ
टाली पुल से गर्दू और राखी गाज तक बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। फोर्ट मंरू और बलूचिस्तान सफर करने वाले हजारों मुसाफिर फंस गए। रोड ब्लॉक होने से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस रोड खुलवाने में मसरूफ अमल है। तो आपको बता रहे हैं जनूबी पंजाब फोर्ट मंरू गर्दू टाली पुल पर ट्रक गिरने का मामला। टाली पुल से गर्दू और राखी गाज तक बदतरीन ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। फोर्ट मंरू और बलूचिस्तान सफर करने वाले हजारों मुसाफिर फंस गए। रोड ब्लॉक होने से मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस रोड खुलवाने में मसरूफ है। आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से ही, जहां PHA की जानिब से शहर के बंद फवारों से मुतालिक ऐलान। मुल्तान शहर के बंद फवारों की जगह खूबसूरत स्ट्रेचर बनाए जाएंगे। स्ट्रेचर बनाने से मुतालिक डायरेक्टर जनरल PHA ने रिपोर्ट तलब कर ली है। तो आपको बता रहे हैं PHA की जानिब से शहर के बंद फवारों से मुतालिक ऐलान। मुल्तान शहर के बंद फवारों की जगह खूबसूरत स्ट्रेचर बनाए जाएंगे। स्ट्रेचर बनाने से मुतालिक डायरेक्टर जनरल PHA ने रिपोर्ट तलब कर ली है। खबर यह है कि PHA की जानिब से शहर के बंद फवारों से मुतालिक ऐलान। मुल्तान शहर के बंद फवारों की जगह खूबसूरत स्ट्रेचर बनाए जाएंगे। स्ट्रेचर बनाने से मुतालिक डायरेक्टर जनरल PHA ने रिपोर्ट तलब कर ली है। आपको बताएं महकमा आसार कदीमा की जानिब से मज़ारात की बहाली का काम जारी। हजरत सखी सुल्तान अली अकबर की दिलदादा के मज़ार पर भी मरम्मती काम जारी है। स्कीम के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा रूही सुहेरा तारिक। बिल्कुल, महकमा आसार कदीमा की जानिब से मज़ारात की बहाली की जानिब तेज़ी से काम जो है वो जारी है और मुल्तान के जो मज़ारात कई सालों से खस्ता हाली का शिकार थे उनको उनकी असली हालत में बहाल किया जा रहा है। दरबार हज़रत सखी सुल्तान अली अकबर की जो वालदा का मज़ार है वो कई सालों से खस्ता हाल था। वहाँ पर रंगो रोगन और जो वहाँ पर पुराना कदीम काम हुआ था वो भी मट्टी की तहों की पीछे जो है वो छुप चुका था। वहाँ पर लेबर जो है वो काम कर रही है और मज़ार को उसकी असल खूबसूरत हालत में बहाल किया जा रहा है। इस हवाले से SDO आसार कदीमा गुलाम मोहम्मद साहब से मजीद तफसीलात जानी। ये दरबार हज़रत सुल्तान सखी अली अकबर जो है वो हमारा पिछले साल से काम उस पर शुरू है, लेकिन पिछले साल हमें को फंड की कमी का मसला था जिसकी वजह से उस पर काम कम हो सका। तो इस साल हमें उसके लिए 50 लाख रुपए मुख्तस किए हैं गवर्नमेंट ने, और उसके साथ साथ उसकी जो वालदा का मकबरा है वो भी हमारा उस एस्टीमेट में शामिल था। और वालदा के मकबरे का जो अंदरूनी प्लास्टर था वो काफ़ी ख़राब हो चुका था, तो उसको भी हम दोबारा उसकी असल हालत में बहाल कर रहे हैं और काफ़ी हद तक उसका काम जो है वो अंदर से किया जा चुका है। ये इसकी तकमील तो अगले साल इंशाल्लाह होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग का मसला है कि जब अगर फंडिंग टाइम से मिल जाती है, फंड मिल जाते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये जल्दी कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये अगले साल कंप्लीट होगा। जी बिल्कुल, दरबार हज़रत सखी सुल्तान अली अकबर और उनकी वालदा का जो मज़ार है उसके लिए हुकूमत की जानिब से 3 करोड़ रुपए के फंड जो हैं वो मंजूर किए गए हैं, जिसमें से अभी पहले मरहले में 50 लाख रुपए के फंड जारी किए गए। बाकी हुकूमत की जानिब से जिम खोलने का ऐलान। जिम खोलने पर मालिकान और ट्रेनर्स खुश हैं। कारोबार के बायस शदीद परेशान थे, ऐसा कहना था जिम मालिकान का, जबकि जिम ट्रेनर्स ने कहा कि दौरान जिम सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे। जिम खोलने से मुस्बत सरगर्मियों को फरोग मिलेगा। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही जुनेद अनवर ने। जी जुनेद, इस हवाले से तफसीलात बताइएगा। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद जो जिम्स हैं वो भी ओपन कर दी गई हैं, जिस पर मालकान भी खुशी का इजहार कर रहे हैं और साथ साथ जो ट्रेनर हजरात हैं वो भी पुरमुसरत हैं कि जिम्स खुलने से जो है वो उनकी एक्सरसाइज भी जो है वो बर वक्त हो सकेगी। फैसले को सराहा जा रहा है और साथ साथ जो है वो फैसले पर अमल दरामद करने की यकीनदानी भी कराई जा रही है कि SOPs को भी फॉलो किया जाएगा। सब बात भी करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। जी मखदूम साहब, कैसे देखते हैं कि जिम्स को जो है वो हुकूमत की जानिब से खोल दिया गया है, एक अच्छा फैसला है? देखें जी, बहुत बड़ा स्पेल था कोरोना के हवाले से ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी, मगर उसके साथ साथ ये जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज थी उससे वो काफ़ी इफेक्ट हुई थी, और उसमें एक जिम इंडस्ट्री भी है। क्योंकि इससे लोगों के रोज़गार तो वाबस्ता है सी, मगर इसका हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है। ज़हन में रखिएगा कि जी ये वाहिद इंडस्ट्री है जिससे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, और जब इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो नेचुरली आप किसी भी बीमारी का आप मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो इसलिए ये हुकूमत की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा फैसला है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, मगर इसके साथ साथ हमें SOPs का भी
ख्याल रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जो जिम्स का शौक रखते हैं और जो रेगुलर जिम करते हैं उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से ऐसा इक़दाम है, 6 माह से ज़्यादा अरसे से घर पर मौजूद थे तो जो उनका जिस्म है, जो बॉडी है, वो भी उनको जो है वो जाम होती हुई नजर आ रही थी, मगर जिम खुलने के साथ ही दोबारा से वो उन्होंने जिम्स का रुख। बहुत शुक्रिया जुनेद अनवर, आप इस हवाले से हमें तफसीलात बता रहे थे। अब आपको बताएं, बहावलपुर के चिड़ियाघर से शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई। चिड़ियाघर और दीगर तफरीही मकामात खुलने के इम्कानात पैदा होने लगे। हुकूमत पंजाब ने तफरीही मकामात खोलने के बाद के SOPs भी जारी कर दिए। चिड़ियाघर समेत दीगर तफरीही मकामात 17 अगस्त को खोले जाने का इम्कान है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन अपनी इस रिपोर्ट में। बहावलपुर चिड़ियाघर समेत दीगर तफरीही मकामात को 17 अगस्त तक खोलने की खबरें गर्दिश करने लगी। चिड़ियाघर इंतजामिया को भी जुबानी अहकामात मौसूल हुए। तहरीरी अहकामात के मुंतजर चिड़ियाघर इंतजामिया ने चिड़ियाघर की सफाई और दीगर इंतजामात शुरू कर दिए हैं। चिड़ियाघर मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं। क्यूरेटर चिड़ियाघर मोहम्मद हुसैन गशगोरी की सरबराही में जानवरों के केजेस और लॉन्स की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। अभी तक हमारे पास किसी किस्म के तहरीरी अहकामात नहीं आए, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी तरह हिदायत जारी की है कि इसके SOPs और जो भी खुलेगा उस पर पूरा अमल करके हम पेश करेंगे। क्यूरेटर चिड़ियाघर का कहना है कि तहरीरी अहकामात मिलते ही चिड़ियाघर शहरियों के लिए खोल देंगे। हुकूमती अहकामात के बाद शहरियों को चिड़ियाघर में खूबसूरत माहौल मुहैया करेंगे, जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू है। मोहम्मद अमीन, रोही, बहावलपुर। 4 पहियों वाली गाड़ी कहें या 3 पहियों वाला रिक्शा, शहर मुल्तान में ऐसी ही एक गाड़ी के चर्चे हैं जिसका नाम है रेगुलर। रेगुलर रिक्शे की कम और गाड़ी की ज्यादा मुशाबे है। रेगुलर जब भी सड़क पर निकलता है तो इसे देखने के लिए शहरियों की भी लंबी लाइन लग जाती है। रिक्शे तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज आपको मैं जिस रिक्शा नुमा गाड़ी से मिलवाने जा रहा हूं उसे कहते हैं रेगुलर। शहर औलिया की सड़कों पर आजकल रेगुलर नामी रिक्शा नुमा गाड़ी के खूब चर्चे हैं। रेगुलर को दूर से देखो तो गाड़ी, लेकिन करीब आने पर यह हकीकत वाज़ेह होती है कि रेगुलर रिक्शा नुमा गाड़ी है। रेगुलर को रमजान मिर्जा नामी बुजुर्ग शहरी ने अपनी मदद आप के तहत 3 साल में 4 लाख खर्च करके बनाया है। रमजान मिर्जा ने बताया कि उनका ख्वाब था कि रिक्शे को गाड़ी नुमा बनाऊं। इस मकसद के लिए 6 मुख्तलिफ गाड़ियों के हिस्सों को जोड़कर रेगुलर बनाया है। अभी इस पर मजीद काम बाकी है। ये बचपन से ही मुझे कुछ करने का शौक था, लेकिन मसाइल मेरे साथ रहे हैं, जो अब जाके मुझे थोड़ा सा मौका मिला है और मेरे ज़हन में आया कि कुछ बन सकता है, तो ये शुरू किया मैंने। रेगुलर जब रोड पर निकलता है तो शहरियों का हजूम उसे देखने और सेल्फी लेने पहुंच जाता है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि रमजान मिर्जा ने वाकई अनोखा काम किया है। रेगुलर रिक्शों की दुनिया का मुस्तकबिल हो सकता है। जैसे उन्होंने बनाया है, हद कर दी यार, समझ से बाहर है, सोच से बाहर है जो काम किया है। पीछे रिक्शा है और आगे गाड़ी है। शहरी मिर्जा रमजान का कहना है कि आइंदा दिनों में रेगुलर जैसे मजीद रिक्शे भी मुतारिफ करवाऊंगा। रेगुलर न सिर्फ दिखने में मुनफरिद है बल्कि इसका सफर भी आरामदेह है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। आपको बताएं, रेस्क्यू 1122 के जवानों ने मुश्ताक कॉलोनी में दरख्त पर फंसे कौवे को आजाद करा दिया। रेस्क्यू एहलकार इंसानों के साथ साथ दीगर जानवरों को भी मुसीबत की घड़ी में मदद देने की कोशिश करते रहते हैं। मियां चन्नू की मुश्ताक कॉलोनी में सुबह सवेरे दरख्त पर डोर में फंसा हुआ कौवा था। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की और पेशावराना सलाहियतों को बरूएकार लाते हुए दरख्त पर डोर में फंसे कौवे को आजाद कराया, पानी पिलाकर फजा में आजाद कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू जवानों की इस काविश को सराहा है। आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से, जहां वाइस चेयरमैन PHA मलिक अमजद अब्बास ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चेयरमैन PHA इजाज हुसैन जंजुआ ने मलिक अमजद अब्बास को ऑर्डर दिए। चंद रोज कबल वाइस चेयरमैन ओहदे से इकबाल सैफी ने इस्तीफा दे दिया था। इकबाल सैफी के बाद मलिक अमजद अब्बास को वाइस चेयरमैन की जिम्मेदारी दे दी गई। मलिक अमजद अब्बास को PHA अफसरान की जानिब से मुबारकबाद दी गई। तो आपको बता रहे हैं, वाइस चेयरमैन PHA मलिक अमजद अब्बास ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया।
आपको बताएं, मियांवाली से ताल्लुक रखने वाली मोमर खातून बख्तावर बीबी ने पाकिस्तान अपनी आंखों से बनते देखा। उन्होंने पाकिस्तान बारे क्या बताया, ये जानते हैं अख्तर मजाज की इस रिपोर्ट में। अपनी आंखों से पाकिस्तान को बनते देखने वाली मोमर खातून ने बताया कि पाकिस्तान बना तो इसकी उम्र 20 साल के करीब थी। पाकिस्तान बनने पर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान बनने की खुशी में सदका और खैरात दिया। लोगों ने कहा कि अब हमारा वतन पाक हो गया है। ये अंदाजा पहले दिया वी आई या पदराई, हाँ ये मेरी उम्र आई कि ये खुश थी थे जो आज पाकिस्तान बने। मैं हजे बानी है तो मैं लुगी रात कर बानिया आदिया ये नोटा दिया किरा रजाइयां भर भर के दिदी वेदिया ने ते मुसलमान उडू शे मरी कुटी के तियारे इन्हें तो हब्बो कुछ गिर गया। मुल्तान में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां अरूज पर। शहर में सब्ज हिलाली परचमों, झंडियों, बैजेस और दीगर सजावटी सामान के स्टॉल्स लग गए। भर की तरह शहर औलिया में भी जश्न आज़ादी के रंग नजर आ रहे हैं। हर कोई आज़ादी का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियों में लगा है। बाजारों में लगे स्टॉल्स पर बच्चे बड़े सभी पहुंचे। शहरी अपने गली मोहल्ले को सजाने के लिए सामान की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। अगस्त की शॉपिंग करने आया हूँ, झंडियाँ लेने आया हूँ, खुद रेडी होऊंगा और घर को भी सजाऊंगा मैं। सजावटी सामान की डिमांड बढ़ी तो स्टॉल्स लगाने वाले दुकानदारों की भी चांदी हो गई। नन्हे बच्चों का कहना है कि 14 अगस्त को हम भरपूर अंदाज से मनाएंगे। मैंने आज एक झंडा भी लिया और झंडियाँ भी ली। आज मैं 14 अगस्त की शॉपिंग करने आया हूँ, घर को अच्छा सजाऊंगा। शहरी कहते हैं कि रवा साल घरों, गली मोहल्लों, बाजारों, इमारतों को सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों समेत दीगर सजावटी सामान से खूब सजाकर आज़ादी का जश्न मनाएंगे। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अली रियाज, मुल्तान। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।